Let's start with what is being seen as a mega assault on gender justice today. Even as women of the Muslim community continue to fight for their rights globally, the historic Jama Masjid in the national capital has taken an unprecedented step to bar the entry of girls. The Jama Masjid administration has issued an order prohibiting the entry of solitary or group of girls at the mosque premises. In fact, Times Now has also accessed visuals of the signboards that have been placed outside the mosque informing visitors that girls are not permitted inside. The signboards have been installed outside each of the mosque's 3 entrances, which reads, and I quote, "It is forbidden for girls or women to enter Jama Masjid alone." And those are the signboards that we're talking about that have been placed at all the 3 entries of Jama Masjid. A lot of criticism coming in for this big move because there is an attempt, people say, several political parties say, that women though continue to fight for their right to choose their religion, their rights, there is an attempt being made to crack down on the same, to silence those very voices. A ground report first up. जामा मस्जिद में अकेले लड़कियों का दाखिला मना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये आदेश जो है जामा मस्जिद के जो प्रशासन है उसने ये आदेश जारी किया है। और देखिए, जामा मस्जिद के दरवाजे पर एक बोर्ड चस्पा की गई जिसपे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जामा मस्जिद में लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। और साथ ही साथ उसके ठीक नीचे भी एक बोर्ड लगाया गया है कि बाद नमाज मगरिब औरतों का दाखिला मना है। इसको लेकर के इस आदेश के बाद जो है यहाँ जो मुख्य दरवाजे पे यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। जो भी लड़कियां अकेले आ रही हैं उन्हें यहाँ रोक दिया जा रहा है। और जामा मस्जिद के जितने भी दरवाजे हैं वहाँ पर यह बोर्ड चस्पा किया गया है। लेकिन जहाँ पूरे विश्व भर में जो इस्लामिक समाज से जो महिलाएं हैं वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही हैं, ईरान में और तमाम जगहों पे, ऐसे वक्त में भारत में मस्जिद के बाहर यह बोर्ड लगाया गया जहाँ साफ तौर पर लिखा गया कि जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए जामा मस्जिद अमन कमेटी से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि लड़कियों का दाखिला मना है, ऐसा क्यों मना किया गया? देखिए, लड़की और लड़के अंदर आते थे, टिकटॉक वगैरह बनाते थे, जिससे कि जामा मस्जिद की बेहरमती होती थी। इसको देखते हुए फिर इमाम साहब की तरफ से ये फैसला लिया गया कि ऐसा कोई भी एलिमेंट अंदर नहीं जाएगा जिससे कि जामा मस्जिद की बेहरमती हो। और मैं समझता हूँ And there is a bit of a hesitance as well on part of several political parties to openly condemn this diktat. JDU, for example, has not openly condemned it, has called it an internal matter of the community. Listen in. JDU is for women empowerment, women equality. So if this is the thing which is coming out in Jama Masjid, I think that this is an internal matter of the Muslim community, and they should spread awareness about the women empowerment and the women equality. And I think among the awareness and discussion among the Muslim masses, they can come to a conclusion that women should have the equal rights as per men, and they can go unaccompanied to Jama Masjid. So the JDU leader says women can go to mosques unaccompanied by men, but here is another take coming in from Ejaz Ahmed of the RJD, who says that religious matters are sensitive and so cannot openly comment on the same, and people do have a tendency to go there, click photos, spoil the environment, and hence we accept the decision. Listen in. ये धार्मिक मामला है, धार्मिक और मजहबी मामले में हर तरह का लोगों को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ख्याल नहीं रखते हैं। आजकल फ़ोटो सेशन का एक दौर जो चल गया है उसके वजह कर इस तरह का रोक लगाया गया है। वहाँ पर इबादत करने का कोई रोक नहीं है, वहाँ पर लोग जाएं, इबादत करें, लोग वहाँ पर प्रीमिसेस में जा कर के अच्छी बातें करें तो ये बेहतर होगा। लेकिन फ़ोटो के लिए या फ़ोटो सेशन के लिए अगर जाते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो ये उचित कदम है। Let me go across to Mohit Bhatt joining us live with more details. Mohit, mixed political reactions coming in, but we do see a little bit of hesitance on part of certain political parties to openly condemn this diktat. As far as this move is concerned, isn't it absolutely unprecedented? We've not seen or heard of something such as this before. Well, Prithvi, the explanation that has come in from the spokesperson of the RJD or from the administration of Jama Masjid is that young people go inside the premises of Jama Masjid and they click pictures. Okay, if the administration is not okay with that, then
it's okay. But why exactly you are banning the women over there? The men also go inside the premises of Jama Masjid and they also take pictures. So this shows the patriarchal mindset of the administration over there, and certain Muslim clerics who will blame women for everything. Now they say that women come inside and they form and they make TikTok videos or the Insta reels, or they click pictures, but the men are also responsible for that. Then why exactly are you banning the entry of women in a group, or singularly why exactly you need to have men with the women? Then they will be allowed to they will be allowed inside the premises of Jama Masjid. So this shows the patriarchal mindset, and we have various leaders from across the party lines who are in a way coming out and very hesitant in condemning this particular diktat. Now the Delhi Commission from Women Chief Swati Maliwal has also come out, and she has also condemned the diktat that has been issued by the administration of Jama Masjid. We have also had Yasir Jilani from the BJP who clearly says that these Maulanas who are giving out such diktat, they do not understand Islam. Islam is about women, freedom of women. So clearly you see this particular diktat is against women. You need to understand, when you come out and you say that it's because women are going inside, the people are going inside and they're making various videos for social networking site, it's all about the men also. Then why exactly are you stopping women in group, or singularly women without a man cannot be allowed inside the Jama Masjid premises? It shows the patriarchal mindset, and that is where the BJP is hitting out at all these diktats, saying that this is anti-women mindset. Now anybody can go inside and anybody can shoot a video, but if you say that women are not allowed. Absolutely, that's very, very problematic. Let me take that to Rahul Ishwar joining us on the phone line. Rahul Ishwar, you know, why is it that something like this would have only been done or imposed for women? We have Ejaz Ahmed also joining us on the phone line, so I'll quickly go to him because we have a reaction from him and we want him to justify what he said a while ago. I'll come back to you, Rahul Ishwar. Mr. Ahmed, आप क्या कहेंगे इस ऑर्डर को लेके? ये जो हम बोर्ड्स देख रहे हैं तीनों एंट्रेंसेस पे जामिया मस्जिद के, कैसे देखेंगे आप? हमने आपको सुनते हुए पहले देखा कि ये आप कह रहे हैं सही दिशा में निर्णय लिया गया है, क्योंकि काफी सारी गलत चीजें चल रही हैं जामा मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के अंदर। कैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं इस ऑर्डर को? देखिए, जो जामा मस्जिद के प्रबंधक हैं उनके द्वारा ये आदेश निकाला गया है। उन्होंने हर स्तर पर अपना जांचा परखा होगा, उसी के बाद ऑर्डर निकाला है। और इसको वुमेन एम्पावरमेंट से नहीं देखा जा सकता। इसको इस मामले में देखा जाए कि जो धार्मिक संस्थान के लोग होते हैं वो अपने धार्मिक संस्थाओं में किस तरह से अपनी प्रीमिसेस को बढ़िया ढंग से इस्तेमाल कर सके और बढ़िया ढंग से उसको लोगों के इस्तेमाल के लिए वहां पर अहमद साहब, अगर फोटो खींचने में या धार्मिक संस्थाओं का जहां पे जो लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा है, उसमें अगर कोई आपत्ति हो तो समझ आती है, पर ये रूल सबके लिए लागू होने चाहिए ना सर? लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? देखिए, ये प्रबंधक का फैसला है, प्रबंधक ही बता सकते हैं। पर आप इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं ना अहमद साहब? मजहबी मामले में इसको एम्पावरमेंट से नहीं जोड़ा जाए। इसको अहमद साहब, बट हमें ये तो बताइए, बस एक सवाल है, अगर आप कह रहे हैं इसको वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स के लेंस से नहीं देखा जा सकता है, तो उसको समझाइए तो हमें। लड़कों को क्यों नहीं मना किया गया है अंदर घुसने के लिए, अकेले या ग्रुप में? लड़के भी तो तस्वीरें ले सकते हैं ना अहमद साहब? किसी को नहीं किया गया, उसमें आप क्लाउज देखिए, उसमें मना किसी को नहीं किया गया। सर, कहा गया है अकेले या ग्रुप में महिलाओं की एंट्री अलाउड नहीं की जाएगी, या वो किसी मर्द के साथ होंगी या अपने परिवार के साथ होगी तो ही अंदर आने दिया जाएगा। फैमिली के साथ, देखिए वो प्रीमिसेस है इबादत की जगह का, वहां पर वो फैमिली के साथ जा सकते हैं। अब वहां पर वो तफरी के लिए जाना चाहेंगे तब तो आपत्तिजनक। लड़की ही तफरी मारने आती है सर, लड़के नहीं तफरी मारने आ सकते। लड़की का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है, वहाँ पर वो जो लड़की का मामला नहीं है तो ऑर्डर में ये जो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं सामने, इनमें सिर्फ लड़कियों का क्यों जिक्र किया गया है सर? अब वो तो प्रबंधक बताएंगे, लेकिन तो आप उस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि सिर्फ लड़कियों के लिए ऐसा रूल क्यों? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं। इस मामले सपोर्ट का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है कि जो मजहबी इबादत गाह है, जो धार्मिक स्थल है, उसका जो देख रेख प्रबंधक करते हैं या जो कमेटी करती है, वो अपने स्तर से क्या कर रही है
उस पर सरकार को देखना चाहिए। अहमद साहब, अब उस आप बात मामले में- घुमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मजहब का मामला है तो अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन लेना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, बहुत ही आसान सवाल है कि सिर्फ लड़कियों तक क्यों सीमित है ये ऑर्डर? सिर्फ ये लड़कियां ऑर्डर- तफरी मारती हैं ऑर्डर वहां तो पे? मैं देखा ना हूँ। सुनिए, हेलो, मैं ऑर्डर देखा नहीं हूँ और ना मैं ऑर्डर को पढ़ा हूँ, इसलिए इस मामले में क्या ऑर्डर है वो ऑर्डर हम नहीं जानते हैं। लेकिन चलिए, इतना हम जानते हैं कि अहमद साहब हमारे साथ बने रहिए। मोहित मेरे कॉलीग है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बता देंगे ऑर्डर के बारे में। उनके पास कोई सवाल भी आपके लिए? पर पृथ्वी, मैं सीधा सवाल एक अहमद जी से ये पूछना चाहूंगा। अहमद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने बात की कि अंदर जाके लोग फोटोज खिंचाते हैं, महिलाएं फोटोज खिंचाती हैं, रील्स बनाती हैं, ये सब एक एक्सप्लेनेशन आ रहा है। लेकिन सवाल मेरा यह कि लड़के भी तो वहां जाते हैं, तो लड़के भी तो जाते हैं सर, लड़के भी जाते हैं, उनको रोकिए। आप ये कहिए कि अकेले लड़के ग्रुप में ना जाएं। आप अपनी बात को मेरे मुंह से लेकिन मत महिलाओं को क्यों कहलवाइए। रोका गया है? आप सवाल ये कि अपनी महिलाओं को सिर्फ आप क्यों रोका अपनी गया है? बात कहना चाहते हो तो एजाज जी, कहिए, महिलाओं को लेकिन क्यों रोका हमारी गया बात है? मत कहलवाइए। एजाज जी, महिलाओं को क्यों रोका गया है? सिर्फ महिलाओं को क्यों रोका गया है? सिर्फ महिलाओं को क्यों रोका गया है? क्यों उनके साथ में किसी पुरुष का होना जरूरी है? जो कमिटी के प्रबंधक तो आप भी सवाल उठाइए ना सर, आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। सुनिए ना सर, आप एक जो भी धार्मिक प्रबंध जी कहिए। कमेटी बनाई जाती है वो उस मामले को देखती है। वहाँ पर दिल्ली वक्फ बोर्ड है, दिल्ली सर कमेटी अपना डिसीजन लेगी, पर आप उस डिसीजन को गलत या सही तो बोल सकते हैं ना अहमद साहब। आप तो बोल रहे हैं सही है, लड़कियां तफरी मारने आती हैं, लड़कियों को अकेले नहीं घुसने देना चाहिए। अगर आप जैसे लोग ऐसे कमेंट्स फैसला लिया है या जो वहाँ पर मतलब उन्होंने अपना बोर्ड लगाया है, अहमद साहब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। यहाँ पे अगर आप ऐसे रिमार्क्स या ऐसे कमेंट्स देंगे तो कैसा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा? जो गलत है उसको तो गलत बोलना चाहिए ना सर। एग्जाम्पल किसी को मतलब जो है ना इस तरह से डिफेम करने से भी नहीं हो जाएगा। सर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है। लेट मी गो क्रॉस टू प्रणेश एज वेल। प्रणेश, एजाज अहमद साहब, सबसे पहले तो देखिए, आप बड़े नेता हैं, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, इसीलिए आपसे बात भी कर रहे हैं। टाइम स्टॉप सुन तो लीजिए एजाज साहब, सवाल तो सुन लीजिए। मैं जानता हूं आप क्या जानते हैं, आप सुनिए। एजाज अहमद साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का कहाँ मसला? सुनिए तो, बात तो सुनिए। एजाज अहमद साहब, एजाज अहमद साहब, ये मामला नहीं, बात तो सुन लीजिए, सवाल बोलने तो दीजिए सर। संस्थाएं हैं उनका मामला, अरे बोलने की जो आजादी दीजिए, वहाँ पर लोग हैं उनका मामला, बोलने की तो आजादी दीजिए। अच्छा, मेरी सवाल, आप हमारे अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको बोलने देंगे? कौन कह रहा है सर कि मैं अथॉरिटी? सवाल तो सुनिए। आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ऊपर रख करके, हम आपके भाषा से नहीं अपनी बात रखेंगे। आप मत रखिए सर बात, सवाल तो सुनिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको क्या नहीं बोलना। सुनेंगे, हम एंकर से हमें सवाल सुनेंगे। आप सवाल करने वाले हमसे कौन होते हैं? आप एंकर से सवाल कीजिए या एंकर हमसे पूछेंगे? सर मैं भी एंकर ही हूं सर। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप महिला सशक्तिकरण में मानते हैं कि नहीं? महिला सशक्तिकरण और धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक रूप से मतलब जो है ना, जो वहाँ पर इंतजामिया कमेटी है, ये तीनों का एक समान अधिकार है। एजाज अहमद साहब देखिए, एक एक करके सवाल जवाब करते हैं, एक एक करके। गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, इसमें सरकार को देखना चाहिए। नहीं, सरकार की बात ही नहीं है ये बात। ये देखिए, मेरे कुछ सवाल हैं, आपके अपने विचार हैं, मैं सवाल पूछता हूं, आपको जो कहना है आप कहिए। मैंने आपसे ये पूछा, महिला सशक्तिकरण में आप मानते हैं कि नहीं? महिला सशक्तिकरण कौन नहीं मानता है? मानते हैं आप? अच्छा ठीक है, अब दूसरा सवाल सुनिए। महिलाओं को हर तरह से अब दूसरा सवाल सुनिए। बिल्कुल आजादी देना चाहते हैं। मतलब ये नहीं, आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप, का मतलब ये नहीं है कि आप फोटो शूट जाकर के कहीं कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर लड़कों के साथ सुनिए, नहीं होता है एजाज अहमद साहब, अगर लड़के का भी मामला है, एजाज अहमद साहब, अगर लड़कियां लड़कों के साथ जाएगी क्या फोटोशूट नहीं होगा? सर जहां धार्मिक स्थल है सब जगह इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है सर। कोई एक मस्जिद और मंदिर का मामला आप नहीं दिखा है, दीजिए कौन से मंदिर में लिखा हुआ है कि लड़कियां अलाउड नहीं है अकेले? का मामला नहीं है। नहीं तो अभी तो आपने बोला कि हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। कौन से मंदिर में देखा आपने?
प्रीमिसेस के जो प्रबंधक ये हैं, एक उनका मामला तालिबानी है, उनके माइंडसेट पीछे का मामला है, सर। एक फंडामेंटल माइंडसेट का, फंडामेंटलिस्ट सोच है ये। आपने शुरू नहीं, किया। फंडामेंटलिस्ट सोच नहीं होता है, सोच सबका एक ही होता है। और आजादी का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप जो है ना उसको फंडामेंटलिस्ट से जोड़ नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि आप लड़के अगर लड़के साथ में नहीं रहेंगे, फंडामेंटलिस्ट से जोड़ दीजिए। एजाज अहमद साहब, आजादी का अगर मतलब लड़के होता है कि लड़कियों के साथ नहीं आपका जाएंगे तो जो क्या ख्याल होगा? है। मैं बस आपसे ये समझना चाहता हूँ। लड़के अगर लड़कियों के साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? भाई लड़का और लड़की कहाँ वहाँ लिखा हुआ है? वहाँ पर अरे लिखा हुआ है, आपने देखा ही नहीं क्या वहाँ लिखा पर- हुआ है? हम तो इसीलिए आपने ना बोल रहे हैं, बयान हम दे दिया, देखेंगे तब ना तो बोलेंगे। बिना देखे हुए बयान दे दिया आपने। हम तो इसमें मतलब बिना हम देखे- कहाँ ये देखिए, मैं आप गलत बयान बोर्ड- दिया? हम बोर्ड तो चला आज भी रहे- बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि प्रबंधक का वहाँ पर मामला है। प्रबंधक की बात ही नहीं है, इसमें लिखा हुआ है इस मस्जिद में, देखिए मैं जो लिखा हुआ वही पढ़ रहा हूं। इस मस्जिद में लड़की या लड़कियों को अकेले जाना मना है। हाँ, अकेले तो उनके साथ कौन जाएगा? फैमिली का लोग रहेगा, फैमिली का लोग रहेगा, कोई मेल सदस्य रहेगा ना, फैमिली का लोग रहेगा। उसमें सर, ये नहीं फैमिली लिखा का हुआ लोग। है। अगर फैमिली के 4 महिलाएं जा रही हैं तो अलाउड नहीं है, उसमें लिखा हुआ है लड़कियों का अकेले जाना, लड़की या लड़कियों का फैमिली- अकेले जाना। फैमिली अगर का- पुरुष फैमिली रहेगा का साथ लोग में तो जाएगा, क्या हो सर। जाएगा? नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? ये फैमिली तो का आप लोग बोल रहे जाएगा। हैं। या ये उसमें संशोधन करवा दीजिए, उसके नीचे एक और बोर्ड लगा दीजिए कि फैमिली मेंबर अलाउड है। वहाँ पर जो कमेटी है उससे आप बात कर लीजिए। वो आपने तो संशोधन शुरू में जब कृष्णवीर ने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि देखिए ये तो एक तरह से सही है। कैसे सही बता सकते हैं आप इसको? नहीं, सही कहाँ सर बोले आपने हैं? सिर्फ ये नहीं फिर कहा आप- कि ये सही फिर है, आप आपने अपने मुंह से कहा मेरे बात को करवा रहे हैं। आप इसके पक्ष में हैं क्योंकि लड़कियां तफरी मारने जाती है। इसका क्या मतलब है सर? मैं तफरी का बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ सर, कि वहाँ आपके पर जो है शब्द ना, हैं। जो प्रबंधक ने आपके शब्द जो हैं, आप ही किया के शब्द है- आपको बता रहे हैं। नहीं, कैसे आप डिसाइड प्रबंधक कर ने जो सकते हैं किया लड़की है- तफरी मारने जा रही है, लड़के तफरी मारने जा रहे हैं, कौन तफरी मारने जा रहा है? और यही वो साइन बोर्ड तफरी भी मारना डिसाइड क्या कर होता रहा है? है। कृष्णवीर, व्हाट इज तफरी मारना? एजाज अहमद साहब, तफरी मारना क्या होता है? कहाँ तफरी मारने की बात है सर? कहाँ अभी तो वहाँ आप पर बोल रहे कहा थे हुआ है? तफरी मारना। नहीं, तफरी का कहाँ बात कर रहे हैं आप लोग? अपने मुंह से क्यों दूसरे की बात करवाना चाहते हैं? अभी आपने आप बोला, लोग आप जो सुना दें बोलिएगा आपने तो क्या थोड़ी बोला? हम बोल देंगे वो बात। आपने सर, तो आप अभी मुझसे बोला। बात कर रहे थे, मोहित भट्ट भी गवाह हैं, हमारे कॉलीग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपने तफरी शब्द का इस्तेमाल किया है और ये गलत है नहीं, सर। नहीं, मैंने इसीलिए हम कहा आपसे आपको पूछ रहे हैं फोटो कि शूट कौन के लिए डिसाइड इसके करता लिए है अगर अहमद मना साहब? किया गया तो गलत कौन नहीं है। अच्छा, डिसाइड फोटो करता है शूट कि में क्या कौन गलत तफरी है? मार रहा है? और आप ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? क्या आपकी इतनी इसके लिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा है गया सर? तो गलत नहीं है सर। एजाज अहमद साहब, फोटो नहीं शूट होना में क्या चाहिए। गलती है? फोटो शूट में क्या गलती है? फोटो शूट में आप देख लीजिए। फोटो अभी जो किस तरह आपका, का आता है। आप देखिए टाइम्स नाउ पे जो आप बात कर रहे हैं, हमने आपका फोटो लगाया। फोटो शूट ही नहीं होता तो फोटो कहां से चलता? ये गलत हुआ है आपके साथ। आपका फोटो चल रहा है अभी, ये गलत है। चेहरा ढक दें आपका, क्या कर दें बताइए आप? फोटो शूट हुआ होगा तभी तो फोटो चल रहा है। आप स्वतंत्र हैं, जो करना हो नहीं नहीं, मैं स्वतंत्र तो हूं। मैं तो आपने जो अपने विचार हमको बताए, मैं तो बस उसी पे सवाल पूछ रहा हूं। फैसला लिया है वो नहीं तो आप बोल दीजिए ना, आप भी जिम्मेदार नेता हैं, आप कहिए कि ये गलत है। कैसे महिलाओं के साथ ये अभद्र व्यवहार चलिए आप अहमद साहब, अलाउ इतना करेंगे? तो बोल दीजिए कि अगर लड़के वहां तफरी मार रहे हैं, जो आप शब्द यूज कर चुके हैं, तो उनका भी नाम लिया जाना देखिए, चाहिए इस बोर्ड पे। मैं बोल रहा हूं, सिर्फ मैं बोल लड़कियों रहा के हूं, लिए कोई भी क्यों ये धार्मिक ऑर्डर? स्थल में, कोई भी धार्मिक स्थल में अगर फोटो तो कैमरा नहीं अलाउ जाते हैं करना तो चाहिए गलत है। अंदर। ऐसे बहुत धार्मिक जगह हैं जहाँ पे कैमरा सख्त मना है, पर लड़कियों के लिए ऐसा क्यों? नहीं, लड़की लड़का सबके लिए फोटो शूट गलत है। फोटो शूट गलत है। All right. We leave it at that with Ejaz Ahmed. Thank you, Mohit, for joining us with those details. We'll try and pick up more political reactions because there is certainly an uncomfortable silence. People really not coming out and calling this, condemning this in the open, and that's what Times Now is questioning at this hour. Thank you for that. We need to head into a very quick break.